Everyone, welcome back to the pharmacology lectures by MKT. Yeah, that's me, Dr. Mangesh Kumar Tripathi. So guys, हम लोग अपना जो सिस्टम हमने चालू किया था, that is autocoids. We are continuing the topic of autocoids, and in the series of autocoid topic, we are at the end of our last topic, that is rheumatoid arthritis. ठीक है, so it is a joint related condition. So what is rheumatoid arthritis, guys? It is nothing but it is a chronic autoimmune disease. मतलब खुद की ही बॉडी अपने खुद के सेल्स के अगेंस्ट इट विल कॉज डैमेज. सो इट इज अ क्रोनिक ऑटोइम्यून डिसीज, ठीक है, विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय द साइनोवियल जॉइंट इन्फ्लेमेशन विच लीड्स टू द पेन, रेडनेस, स्वेलिंग, स्टिफनेस एंड द जॉइंट डिस्ट्रक्शन. ठीक है, ये हमारा डेफिनेशन है रोमेटॉइड आर्थराइटिस का. ठीक है, अब हमको डेफिनेशन समझ गया है. अब हम लोग मूव होते हैं व्हाट इज अ मेन पैथोजेनेसिस. ठीक है, सो मेन पैथोजेनेसिस इज, गाइस, मैंने क्या बोला कि अपनी ही सेल अपने ही बॉडी के अगेंस्ट डिस्ट्रक्शन कर रही है. सो दिस डिस्ट्रक्शन इज a cell derived, is a cell mediated, and the cell which is responsible for all this symptom is lymphocyte. So the inflammation is lymphocyte mediated, and because of which the lymphocyte produces some cells, that is interleukin IL-1. You can see this is interleukin 1, interleukin 6, and TNF का full form is tumor necrosis फैक्टर अल्फा. ठीक है, तो इनके दिस आर योर 3 मेजर मेडिएटर्स ऑफ इन्फ्लेमेशन, जिसके वजह से जॉइंट विल हैव रेडनेस, पेन, स्वेलिंग. दिस इज कॉल्ड आर्थराइटिस. यू अंडरस्टूड गाइस? ठीक है, सो lymphocyte is the main culprit which mediates inflammation, and we have the inflammatory mediators which are released at the site of the joint, and उसके वजह से there are all symptoms occurring in the patient. ठीक है, also on the surface of lymphocyte, guys, we also have a antibody which is present, that is called as CD20. ठीक है, that is a receptor which is present which is called as CD20. ठीक, अब मैं ये क्यों बता रहा हूं CD20, इंटरलुकिन 1, इंटरलुकिन 6, TNF अल्फा, बिकॉज हम लोग ट्रीटमेंट करेंगे ना गाइस. सो दिस आर द मेन सेल्स जिसके अगेंस्ट वी आर प्रोड्यूसिंग द ड्रग. ठीक, ओके ओके, ठीक. Okay, so we understood what is the definition of rheumatoid arthritis class, and we also have understood what is the pathogenesis of the rheumatoid arthritis. Now everybody, we should also know which is the most common joint which is involved in rheumatoid arthritis, and the most common joint involved is metacarpophalangeal joint class, metatarsobphalangeal joint, and interphalangeal joint class. ठीक है class? So you have understood which are the joint involved. It is mainly metacarpophalangeal, metatarsophalangeal and interphalangeal joint, which are the most common joint involved in rheumatoid arthritis. Okay, understood? ठीक. Okay, अब हम लोग देखेंगे ट्रीटमेंट ऑफ rheumatoid arthritis कि भाई अगर किसी पेशेंट को आर्थराइटिस हुआ है, दैट इज रूमेटॉइड, तो कैसा ट्रीटमेंट हम लोग दे सकते हैं. ठीक, ओके ओके गाइस, सो वी विल स्टार्ट विद द ट्रीटमेंट ऑफ rheumatoid arthritis. ठीक क्लास, हमने अभी क्या बोला, इनिशियल सिम्टम्स क्या होते हैं बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर्स. यस, द पेशेंट हैज रेडनेस, पेन, स्वेलिंग एंड स्टिफनेस, मॉर्निंग स्टिफनेस. ठीक है, एंड द मोस्ट कॉमन, और वी कैन से द जेंडर विच सफर मोर फ्रॉम द रूमेटॉइड आर्थराइटिस, इट इज द फीमेल. सो फीमेल आर द वन विच आर having more of rheumatoid arthritis compared to male. ठीक है, ओके. सो गाइज, अगर हमने बोला कि पेशेंट को क्या है, रेडनेस, पेन, स्वेलिंग एंड स्टिफनेस इन द मेटाकार्पोफैलेंजियल जॉइंट. ठीक है, सो द मोस्ट कॉमन ड्रग, दिस इज कॉल्ड आर्थराइटिस. सो विच विल बी द मोस्ट कॉमन ड्रग टू डिक्रीज ऑल दिस थिंग? यस, करेक्ट, दैट इज NSAIDs. ठीक है, सो NSAIDs आर द वन, ठीक है, which is, we can say, the drug of choice for symptomatic arthritis. guys, क्या symptomatic arthritis के लिए drug of choice कौन है? Yes, it is NSAIDs. so sir, कौन सा NSAIDs? Yes, we can use all NSAIDs. All NSAIDs can be used except, guys,
You know there is exception, that is paracetamol. Good. Why? Because paracetamol does not have anti-inflammatory property. Correct? Okay. So we can use all NSAIDs for symptomatic relief. Okay? Okay. अब समझो NSAID से काम नहीं चला, NSAID से आराम नहीं हुआ, then if no relief from NSAID, now we know who is the most powerful drug. Yes, it is correct. It is corticosteroids. So corticosteroid, guys, it is the most powerful drug which is used for, yes, for symptomatic relief of the rheumatoid arthritis. ठीक है? अब corticosteroid में we also have oral, we have injectable. So oral में अगर देखते हैं क्लास, so oral में we have prednisone, prednisolone, और इंजेक्टेबल में देखते हैं, so we have methyl prednisolone, और अगर मुझे डायरेक्ट जॉइंट में इंजेक्शन करना है, दैट इज इंट्रालीजनल और इंट्रा आर्टिकुलर, सो वी हैव ट्राइएमसिनोलॉन. क्या है क्लास? यस, ट्राइएमसिनोलॉन. ठीक. सो अगर हमें एनसेड से आराम नहीं हुआ, पेशेंट को आराम नहीं मिला, देन वी कैन मूव टू कॉर्टिकोस्टेरॉइड. कॉर्टिकोस्टेरॉइड में वी हैव ओरल, इंजेक्टेबल एंड इंट्रा आर्टिकुलर. ओरल में वी हैव प्रेडनिसोन, प्रेडनिसोलॉन, इंजेक्टेबल मिथाइल प्रेडनिसोलॉन एंड इंट्रा आर्टिकुलर में वी हैव गाइस ट्राइएमसिनोलॉन. ठीक है, अंडरस्टूड? ओके. आप ध्यान रखो, अगर मैं ओरल कॉर्टिकोस्टेरॉइड, देखो अभी हमने बोला कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस क्रॉनिक कंडीशन है, मतलब लॉन्ग टर्म दवा देना है, और अगर मुझे लॉन्ग टर्म ओरल कॉर्टिकोस्टेरॉइड देना पड़ा, सो इट कैन लीड टू लॉन्ग टर्म ओरल कॉर्टिकोस्टेरॉइड लीड टू कुशिंग्स डिसीज. सो ओरल तो हट ही गया. अब इंजेक्शन पेशेंट कितने बार लेगा? और देखो ये क्या करेगा, सिर्फ सिम्टम रिलीफ करेगा. ठीक. अब हमारा रूमेटॉइड आर्थराइटिस में मेन प्रॉब्लम और क्या हो रहा है? सिम्टम तो है, उसके साथ साथ जॉइंट डिस्ट्रक्शन भी हो रहा है. सो वी नीड अ स्पेसिफिक ट्रीटमेंट और अ डेफिनेटिव ट्रीटमेंट जो जॉइंट डिस्ट्रक्शन को भी आगे होने से बचा ले. यू अंडरस्टूड? सो योर NSAIDs एंड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, यस, दे आर द फास्ट एक्टिंग ड्रग, बट दे कैन नॉट प्रिवेंट द फर्दर जॉइंट डिस्ट्रक्शन. करेक्ट? अंडरस्टूड? आगे जॉइंट डिस्ट्रक्शन मतलब प्रोग्रेसिव कंडीशन है, जॉइंट डिस्ट्रक्शन को वो प्रिवेंट नहीं कर सकते. हेंस वी नीड अ डेफिनेटिव ट्रीटमेंट फॉर रूमेटॉइड आर्थराइटिस. तो यही मेजर प्रॉब्लम है इन दोनों के साथ कि भाई ये लॉन्ग टर्म नहीं दिए जा सकते. और अगर मैं इन दोनों में देखूं, NSAIDs और कॉर्टिकोस्टेरॉइड, ठीक, NSAID और कॉर्टिकोस्टेरॉइड कौन सा हम ज्यादा प्रेफर करेंगे क्लास? यस, विल मेनली प्रेफर कॉर्टिकोस्टेरॉइड because just remember, because corticosteroid are not nephrotoxic. They are not nephrotoxic like NSAIDs are nephrotoxic. Also corticosteroid, ठीक है, ये हमारे जॉइंट डिस्ट्रक्शन को जब थोड़ा हुआ है, इट विल रिलीज, मतलब इट विल रिड्यूस, सो इट विल डिक्रीज जॉइंट डिस्ट्रक्शन ऑल्सो. देखो जो हो चुका है उसको नहीं कर सकता, उसको रोक नहीं सकता, प्लस ये प्रोग्रेसिव हमारा जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस उसको भी नहीं रोक सकता. ठीक है, बट ये इट कैन डिक्रीज अ स्लाइट अमाउंट ऑफ जॉइंट डिस्ट्रक्शन. सो ये दो एडवांटेज है ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड to NSAID, that it is not nephrotoxic and it can decrease joint destruction for some limit. Understood? But they are not the definitive treatment, so we need the definitive treatment. तो हम लोग का अगला टॉपिक क्या है guys? Yes, the definitive treatment of rheumatoid arthritis. ओके, सो हमने अभी देखा गाइस कि NSAIDs एंड corticosteroids आर नॉट द डेफिनेटिव ट्रीटमेंट, सो वी नीड अ डेफिनेटिव ट्रीटमेंट विच विल प्रिवेंट द फर्दर जॉइंट डिस्ट्रक्शन. ठीक है, एंड डेफिनेटिव ट्रीटमेंट ऑफ रूमेटॉइड आर्थराइटिस इज बाय अ ड्रग कॉल्ड एज DMARDs. नाउ DMARDs का फुल फॉर्म में लिख रहा हूं गाइस, इट इज डिसीज मॉडिफाइंग
एंटी रूमेटॉइड ड्रग। ठीक। नाउ गाइस, हमने अभी इसकी पहले बोला कि एनसेड्स और कॉर्टिकोस्टेरॉइड फास्ट एक्टिंग है। ठीक है, मतलब डीमार्ट्स आर व्हाट, दे आर स्लोअर एक्टिंग, दे आर स्लोअर एक्टिंग, बट दे आर डेफिनेटिव ट्रीटमेंट। तो स्लोअर एक्टिंग, इसीलिए डीमार्ट का दूसरा नाम है सार्ड, एंड सार्ड का फुल फॉर्म है स्लो एक्टिंग एंटी रूमेटॉइड ड्रग। ठीक है क्लास, so slow acting anti rheumatoid drugs। ठीक है, सो हमारा मेन डेफिनेटिव ट्रीटमेंट क्या है रूमेटॉइड आर्थराइटिस का? इट इज डीमार्ट्स, जिसका फुल फॉर्म है डिसीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटॉइड ड्रग, ऑल्सो कॉल्ड एज सार्ड बिकॉज दे आर स्लो एक्टिंग। ठीक है, ओके, बट एक प्रॉब्लम है क्लास इसके साथ, इस डीमार्ट्स और सार्ड के साथ, दैट इट विल टेक मिनिमम 1 month टू स्टार्ट इट्स एक्शन। मतलब 1 महीना लगेगा इसके एक्शन को चालू करने में। सो इट विल मिनिमम 1 month टू स्टार्ट इट्स एक्शन। मिनिमम it takes, I can say, it takes minimum 1 month to start its action। So तब तक पेशेंट को भाई ऐसे उसका जॉइंट डिस्ट्रॉय होने दे नहीं, तब तक हमें क्या देना है गाइस? यस, वी हैव टू गिव कॉर्टिकोस्टेरॉइड अलोंग विथ दिस। देखो, कॉर्टिकोस्टेरॉइड 1 महीने तक देंगे और 1 महीने बाद इसका क्या एक्शन चालू हो जाएगा। उसके बाद हम लोग कॉर्टिकोस्टेरॉइड का डोज क्या कर देंगे? धीरे धीरे टेपर करके बंद कर देंगे। सो दिस थेरेपी, जहां पे हम लोग पहले कॉर्टिकोस्टेरॉइड चालू करते हैं, इज कॉल्ड ब्रिज थेरेपी ऑफ रूमेटॉइड आर्थराइटिस। क्या है ब्रिज थेरेपी? यस, स्टार्ट विथ कॉर्टिकोस्टेरॉइड फॉर 1 month प्लस एड along with it you have to add DMARD। ठीक है, सो स्टार्ट विथ कॉर्टिकोस्टेरॉइड टिल 1 month, फॉर 1 month, एंड साथ में ही उसी के पहले डे 1 से डीमार्ट चालू करो। 1 महीने बाद डीमार्ट का एक्शन चालू हो जाएगा और कॉर्टिकोस्टेरॉइड आप धीरे धीरे टेपर करके डोज कम करके यू कैन स्टॉप इट। अंडरस्टूड? ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज द ब्रिज थेरेपी। ठीक, अब हम लोगों ने डीमार्ट का डेफिनेशन पढ़ लिया, सार्ड का डेफिनेशन या फुल फॉर्म पढ़ लिया। ठीक है, उसका मेन एक ड्रॉबैक पढ़ लिया। अब हमें पता होना चाहिए विच आर द ड्रग्स विच आर इंक्लूडेड इन डीमार्ट और सार्ड। ठीक, ओके। Now class, DMARD, which is disease modifying anti rheumatoid drug, it is classified। ठीक है, कुछ DMARDs थे जो पुराने थे, so they were conventional, और कुछ DMARDs जिनको थ्रू बायोटेक्नोलॉजी प्रोड्यूस किया गया, they are having some other name। ठीक है, so DMARD is classified into 2 types। so we have conventional DMARD। ठीक है क्लास, सो वी हैव, क्या है पहला नाम? कन्वेंशनल डीमार्ट, विच आर ओल्डर वंस, एंड वी हैव द न्यूअर वन विच आर कॉल्ड एज द बायोलॉजिकल डीमार्ट्स। गाइस, ये कन्वेंशनल क्या है फिर? दीस आर बायोलॉजिकल, सो कन्वेंशनल क्या होंगे? दे आर नॉन बायोलॉजिकल। सो कन्वेंशनल का दूसरा नाम नॉन बायोलॉजिकल। सो एग्जाम में दे कैन आस्क, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन नॉन बायोलॉजिकल डीमार्ट, सो इट इज सेम एज कन्वेंशनल डीमार्ट। ओके, ठीक। सो कन्वेंशनल डीमार्ट हो गया, नॉन बायोलॉजिकल डीमार्ट्स एंड बायोलॉजिकल डीमार्ट। अब हमको नाम भी पता होना चाहिए, विच आर द कन्वेंशनल डीमार्ट। सो जस्ट रिमेंबर बाय द निमोनिक माचिस ले, माचिस ले, दिस इज द निमोनिक टू रिमेंबर कन्वेंशनल डीमार्ट। सो M stands for methotrexate, A stands for azathioprine, C stands for cyclosporin, one more drug is there, chloroquine, that is CQ, H for hydroxychloroquine, HCQ, I stands for inhibitor of JAK, ठीक है। S stands for sulfasalazine guys, sulfasalazine, and LE, माचिस ले, so LE stands for leflunomide,
लेफ्लुनोमाइड। नाउ एक और है, यू नो गोल्ड, गोल्ड का सिंबल है AU, सो गोल्ड इज AU। ठीक, सो माचिस ले इज योर कन्वेंशनल डीमार्ट, सो नाम आपको पता होना चाहिए। ठीक, ओके। चल, अब बायोलॉजिकल डीमार्ट में गाइस क्या आते हैं, जस्ट रिमेंबर द निमोनिक, TT, TT होते हैं ट्रेन में, ठीक है। TC बोलते हैं हम लोग, TT भी बोलते हैं बहुत बार, सो इट इज TT। T स्टैंड्स फॉर, गाइस ये मुझे बताओ हु इज द मेन रूट ऑफ इन्फ्लेमेशन, इट इज अ लिम्फोसाइट। ठीक है, अब लिम्फोसाइट के ऊपर कौन सा रिसेप्टर प्रेजेंट है, CD20। तो हम लोग जो ड्रग बनाएंगे वो CD20 के अगेंस्ट बनाएंगे, और तीन कौन से इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर से गाइस, यस, इंटरलुकिन 1, इंटरलुकिन 6 एंड TNF अल्फा। तो उसी के अगेंस्ट ही जो ड्रग है उन्हीं के नाम से है। सो T स्टैंड्स फॉर TNF अल्फा इनहिबिटर, I stands for interleukin 1 antagonist or inhibitor, T stands for it is T cell stimulator inhibitor। देखो स्टिमुलेटर तो यही है ना, CD20 ही है जो स्टिमुलेट कर रहा है कि भाई आप क्या प्रोड्यूस करो, इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर्स को प्रोड्यूस करो। ठीक है, सो T cell stimulator and I stands for interleukin 6 antagonist। ठीक है क्लास, सो TT is your बायोलॉजिकल डीमार्ट। ठीक, सो TNF अल्फा इनहिबिटर क्लास, इंटरलुकिन एंटागोनिस्ट, T सेल स्टिमुलेटर, इनहिबिटर, सब इनहिबिटर हैं, एंड वी हैव इंटरलुकिन 6 एंटागोनिस्ट। ठीक, अंडरस्टूड। सो कन्वेंशनल डीमार्ट माचिसले एंड बायोलॉजिकल डीमार्ट TT। ठीक है, ओके। चल, अब हम लोग एक एक करके देखेंगे। विल फर्स्ट स्टार्ट विद योर कन्वेंशनल डीमार्ट, और उसमें से जो द मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग्स हैं विच कम्स इन द एग्जाम इन योर MCQ विच विल कम, हम लोग वही देखेंगे। ठीक, ओके। सो विल स्टार्ट विद कन्वेंशनल डीमार्ट क्लास, कन्वेंशनल डीमार्ट्स। तो फर्स्ट कन्वेंशनल डीमार्ट जो हम लोग गाइस चालू करेंगे, हमने निमोनिक क्या देखा था गाइस, माचिस ले। ठीक है, सो माचिस ले वाज द निमोनिक, सो M स्टैंड्स फॉर गाइस मेथोट्रेक्सेट। सो हम लोग स्टार्ट ही करेंगे विद द फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट ड्रग दैट इज कॉल्ड मेथोट्रेक्सेट। ठीक है, सो मेथोट्रेक्सेट, अब आपको हमें पता होना चाहिए मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। सो जस्ट रिमेंबर इट हैज मेनली टू मैकेनिज्म। फर्स्ट, मेथोट्रेक्सेट करता है, इट विल किल द लिम्फोसाइट। ये कैसे लिम्फोसाइट को मारेगा, बिकॉज गाइस लिम्फोसाइट ही तो है जो इन्फ्लेमेशन को प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब ध्यान से सुनना, इट विल किल द लिम्फोसाइट ऑफ द इन्फ्लेमेटरी सेल्स। हाउ? ठीक है, नाउ ध्यान से सुनो, फॉलिक एसिड in general I am writing it forms tetrahydrofolate. ठीक है, now this conversion of folic acid to dihydrofolate and tetrahydrofolate, it occurs with in the presence of enzyme called as dihydrofolic reductase, dihydrofolic or folate reductase. ठीक है, so that is DHFRAS रिडक्टेस। R और AS ले लिया हमने, और DHF डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेस। अब ये क्या करता है, दिस टेट्राहाइड्रोफोलेट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द DNA सिंथेसिस इन द सेल। सो DNA सिंथेसिस, और DNA सिंथेसिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फिजियोलॉजिकल फंक्शन, करेक्ट। सो हमारा मेथोट्रेक्सेट क्या करेगा, इट विल किल और इट विल इनहिबिट। ठीक है, सो प्लीज रिमेंबर योर मेथोट्रेक्सेट inhibits your dihydrofolate reductase enzyme. It will inhibit dihydrofolate reductase enzyme, जिसकी वजह से क्या होगा, there will be no conversion of folic acid to tetrahydro, dihydro and tetrahydrofolate, और इसकी वजह से क्या नहीं होगा, DNA सिंथेसिस फॉर्म नहीं होगा, और DNA फॉर्म नहीं होगा तो फिजियोलॉजिकल फंक्शन नहीं होगा, एंड बिकॉज ऑफ विच द लिम्फोसाइट द सेल विल डाई। अंडरस्टूड? ठीक, ओके। सो दिस इज द फर्स्ट मैकेनिज्म ऑफ योर मेथोट्रेक्सेट। नाउ कमिंग टू द सेकंड मैकेनिज्म,
Now guys, in the blood, that is in the extracellular space, we have a protein called adenosine. ठीक है. Now this adenosine is responsible for many एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी. मतलब इस एडिनोसिन के पास क्या है गाइस? एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी है. ठीक है, अंडरस्टूड. नाउ दिस एडिनोसाइन इज मेटाबोलाइज्ड बाय, प्लीज रिमेंबर, इट इज मेटाबोलाइज्ड बाय एडिनोसाइन डीअमाइनेज. समझ रहे हो? एडिनोसाइन डीअमाइनेज. ठीक है. सो अगर मैं क्या कर सकता हूं, अगर मैंने इस एंजाइम को इनहिबिट कर दिया गाइस, तो क्या होगा? एडिनोसाइन विल नॉट बी मेटाबोलाइज, और एडिनोसाइन अगर मेटाबोलाइज नहीं होगा तो इट विल हैव इट्स प्रॉपर्टी इंटैक्ट. तो हमारा मेथोट्रेक्सेट क्या करता है? सेकेंड मैकेनिज्म, इट इनहिबिट्स which enzyme guys? Yes, it will inhibit adenosine deaminase, जो एडिनोसाइन को मेटाबोलाइज कर रहा है. प्लीज रिमेंबर. और उसके वजह से क्या होगा? एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी. सो द सेल विल डाई, द लिम्फोसाइट विल डाई, एंड द इन्फ्लेमेशन विल reduce, the joint destruction will reduce. Understood? So these are the two major mechanism. First, it is a folic acid metabolism inhibitor. Folic acid metabolism को inhibit कर रहा है. Second, it is inhibiting adenosine deaminase. So ये दो mechanism है हमारे किसके? methotrexate के. ठीक? Okay, please note it down. Both the mechanism of action. It's very very important. ठीक? Okay. Okay, अब हमने mechanism देख लिया. Now we should know the dose of methotrexate. The dose of methotrexate where? Yes, in rheumatoid arthritis. So the dose of methotrexate in rheumatoid arthritis, it is 10 to 25 mg per week. ठीक है. So this is the normal dose. This is a normal dose. It is a low dose of methotrexate. Weekly we have to give 10 to 25 mg for rheumatoid arthritis. Please remember this. ठीक है. Okay. अब हमने guys देखा कि methotrexate एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट है. ठीक है. सो देर आर मेनी कंडीशन इन दी बॉडी जहां पे इन्फ्लेमेशन कम करने की जरूरत है. सो वी कैन से मेथोट्रेक्सेट की यूजेस भी उस हिसाब से होंगे. सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट हेडिंग इज, subheading is indications of methotrexate. So which are the other uses of methotrexate? So just remember the mnemonic cancer. Now C stands for तो 6, C stands for choriocarcinoma. Guys, please remember that methotrexate is the drug of choice for choriocarcinoma. ठीक है. So it is a drug of choice for choriocarcinoma. A stands for AML, that is acute myeloid leukemia, or ALL, that is AML or ALL. N stands for non-Hodgkin's lymphoma. ये देख के आपको क्या लग रहा है? यस सर, कैंसर में मतलब मेथोट्रेक्सेट का मेन एक्शन, इट इज एंटी कैंसर एजेंट. यस. Crohn's disease, you know, it is an autoimmune condition. Crohn's disease, intestinal condition. E stands for ectopic pregnancy, and R stands for the most important, rheumatoid arthritis. याद रखो, इट इज अ ड्रग ऑफ चॉइस फॉर रूमेटॉइड आर्थराइटिस. ठीक है. अंडरस्टूड. ओके. सो ये आपका इंडिकेशन है. अब हम लोग आ जाते हैं एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ मेथोट्रेक्सेट पे. ओके. सो हमें इंडिकेशन समझ गया बाय कैंसर. नाउ एडवर्स इफेक्ट, जस्ट रिमेंबर द निमोनिक मेथोट्रेक्सेट can cause severe toxicity.
ठीक है. नाउ ईच वर्ड इज द एडवर्स इफेक्ट ऑफ यस methotrexate. द फर्स्ट वर्ड ऑफ ईच mnemonic is adverse. M stands for myelosuppression, that is bone marrow suppression. C stands for cytopenia. Cytopenia का मतलब होगा कि it will decrease WBC, so leukopenia, it will decrease platelet count, so thrombocytopenia cause करेगा, and it will decrease RBC count, so it will cause erythrocytopenia. Understood? Okay. That is anemia. We can say it will cause megaloblastic anemia. RBC कम करेगा, so it will cause megaloblastic anemia. Please remember, please note it down. Okay. Now C stands for cough. Major is pulmonary toxicity. Lung damage. S stands for it causes stomatitis. Stomatitis is oral ulcer. And the last is T is it is toxic to liver. Sorry. So it is hepatotoxic. So क्या निमोनिक है गाइस हमारे methotrexate adverse effect का? That methotrexate can cause severe toxicity. Also one more T I forgot. The most important is it is teratogenic. Yes, teratogenic drug है. मतलब pregnant female cannot take this in first trimester because it will cause fetal anomaly, and the anomaly which it causes neural tube defect. That is spina bifida. Please remember this. ठीक है? Understood? So these are the major adverse effects of methotrexate. Okay? Now guys हमने देखा था इंडिकेशन में, अगर आपको याद आ रहा होगा, बहुत सारे कैंसर भी थे ऑफ दैट इज इंडिकेशन ऑफ मेथोट्रेक्सेट. तो हमने रूमेटॉइड आर्थराइटिस में तो डोज देखा मेथोट्रेक्सेट का कि भाई 10 to 25 mg पर वीक. अब कैंसर, सो एंटी कैंसर डोज अगर हम देखेंगे मेथोट्रेक्सेट का, इट इज बहुत ज्यादा, मतलब अच्छा खासा, इट इज 100 mg पर डे. So remember the methotrexate का dose is 100 mg per day for cancer, but for rheumatoid it is less, 10 to 25 mg weekly. ठीक? Okay. अब हम लोग गाइस अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कन्वेंशनल डीमार्ट पे आते हैं. सो आफ्टर methotrexate we have the important one is chloroquine, hydroxychloroquine. So, हम लोग क्लोरोक्विन पे आते हैं. द सेकेंड कन्वेंशनल डीमार्ट. ओके. नाउ क्लोरोक्विन गाइस, कुछ घंटी बज रही है. क्लोरोक्विन तो सर हमने मलेरिया में भी देखा है. यस, इट इज एंटी मलेरियल ड्रग. मलेरिया में तो यूज होता ही है, बट देयर आर अदर यूजेस ऑफ क्लोरोक्विन बिकॉज ऑफ इट्स different mechanism in different condition. So rheumatoid arthritis में क्या mechanism होगा guys? सबको पता है rheumatoid arthritis हो ही रहा है because there is inflammation produced, that is interleukin 6, 1 and TNF alpha बढ़ रहा है. तो ये क्या करेगा? उन सबको कम कर देगा. Yes. So the major mechanism of action of chloroquine in rheumatoid arthritis is that it will decrease interleukin 1, interleukin 6, TNF alpha production. Thereby, it will decrease the inflammation. Understood? Okay. Now इसका एक मेजर प्रॉब्लम गाइस, इसकी फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टी एक क्लोरोक्विन की बहुत खास है. दैट इन द होल टेक्स्ट बुक ऑफ फार्माकोलॉजी दिस इज द only drug which has maximum volume of distribution. तो गाइज याद रखो, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जिसकी सबसे ज्यादा हो उसका प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन कम रहेगा और वो और जगह जा जाके डिपॉजिट होने लगेगा दूसरे ऑर्गन में, बिकॉज इट इज लिपिड सोल्यूबल. सो इट इज हैविंग मैक्सिमम वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन एंड इट इज मोर देन 15,000 liters. So more than 15,000 liters इसकी मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है गाइस. सो अगर मैंने लॉन्ग टर्म में क्लोरोक्विन दिया तो क्या गाइस प्रॉब्लम होगा? इट विल गेट डिपॉजिटेड इन डिफरेंट ऑर्गन एंड वहां पे उसकी टॉक्सिसिटी
प्रोड्यूस करेगा. अगर आंख में हो गया इट कैन कॉज कैटरैक्ट, ब्रेन में हो गया इट कैन कॉज कन्वर्जन. सो ठीक है, सो इट हैज मेनी मेजर एडवर्स इफेक्ट लॉन्ग टर्म में. गेट डिपॉजिटेड इन वेरियस ऑर्गन. अगर मैंने लॉन्ग टर्म दिया सो इट गेट्स डिपॉजिटेड इन वेरियस ऑर्गन्स एंड इट कैन कॉज मेजर एडवर्स इफेक्ट्स. अंडरस्टूड? ठीक, ओके. अब गाइस हमने देखा कि इंटरलूकिन 1, इंटरलूकिन 6 टीएनएफ अल्फा को ये क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है. सो इसके यूजेस भी और भी हो सकते हैं. यस, तो हम लोग अभी नेक्स्ट देखेंगे विच आर द यूजेस ऑफ क्लोरोक्विन. सो इंडिकेशन ऑफ क्लोरोक्विन. सो जस्ट रिमेंबर अ निमोनिक रेड लीप ऑफ महात्मा गांधी. Yes, it is red leap of Mahatma. So क्या क्या है? R stands for कौन सा बीमारी पढ़ रहे हैं कंडीशन अभी गाइस? रूमेटॉइड आर्थराइटिस. E stands for एक्स्ट्रा इंटेस्टिनल अमीबियासिस. जब आप एंटीमाइक्रोबियल चालू करेंगे हम लोग उस समय आप अमीबियासिस पढ़ोगे, है ना. दैट इज वन मोर टाइप इन अमीबियासिस इज एक्स्ट्रा इंटेस्टिनल अमीबियासिस. D stands for it is an autoimmune condition called discoid lupus erythematosus. That is DLE. Now L stands for lepra reaction. जब leprosy पढ़ेंगे उसमें there is a autoimmune hypersensitive reaction lepra. I stands for infectious mononucleosis. P stands for photogenic reaction. M for guys most important बीमारी, yes, मलेरिया जिसके लिए क्लोरोक्विन फेमस है. एंड द लास्ट इज जी इज giardiasis. तो प्लीज रिमेंबर द इंडिकेशन ऑफ क्लोरोक्विन बाय निमोनिक रेड लीप ऑफ महात्मा गांधी, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, एक्सटेंशनल अमीबियासिस, डिस्कॉइड लूपस एरिथेमेटोसिस, लेप्रा रिएक्शन, इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस, फोटोजेनिक रिएक्शन, मलेरिया एंड giardiasis. ओके, ठीक. तो क्लास हमने अभी जस्ट देखा कि भाई क्लोरोक्विन मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, तो अगर लॉन्ग टर्म देंगे तो बहुत सारे ऑर्गन्स में जाके डिपॉजिट हो जाएगा, मतलब एडवर्स इफेक्ट भी उस हिसाब से कॉज करेगा. सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट हेडिंग इज एडवर्स इफेक्ट ऑफ क्लोरोक्विन. सो जस्ट रिमेंबर बाय निमोनिक हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन. ठीक है, तो क्लोरोक्विन का भाई कौन है, विच इज अ लॉन्ग टर्म ड्रग, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन. मैंने उसका वो लिखा है शॉर्ट फॉर्म HCQ, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन. नाउ H स्टैंड्स फॉर इट कैन कॉज हेडेक, इट कैन कॉज हियरिंग लॉस लॉन्ग टर्म, इट कैन कॉज हाइपोग्लाइसीमिया, इट कैन कॉज हाइपोटेंशन. Now C stands for it can cause cataract. Now अगर वो कॉर्निया में लॉन्ग टर्म डिपॉजिट हो गया, लॉन्ग टर्म दिया गया, सो इट गेट डिपॉजिटेड इन द फॉर्म ऑफ पिगमेंट एंड इट विल कॉज कॉर्निया वर्टिसिलेटा. सो इट इज अ पिगमेंटेशन सराउंडिंग द कॉर्निया. ठीक है, इट कैन कॉज confusion, convulsion in the brain and coma. And the last is Q, it causes QT prolongation, that is cardiac arrhythmias, can cause arrhythmias, abnormality in the heart. Understood guys? So adverse effect याद रखो बाय निमोनिक HCQ. ठीक है, H for many things, H बहुत सारे हैं, C there are Q, QT prolongation. ठीक है, ओके. अब हम लोग कॉन्सेंट्रेट करेंगे गाइस. यस, तो C डन. नाउ कमिंग टू H. सो H इज हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, HCQ, जो किसका निमोनिक था? यस, इट वाज द निमोनिक फॉर एडवर्स इफेक्ट ऑफ क्लोरोक्विन.
नाउ नाम में ही देखो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, क्लोरोक्विन वॉज हैविंग मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, हर जगह जा जाके डिपॉजिट हो रहा है। क्यों डिपॉजिट हो रहा है? बिकॉज इट इज लाइपोफिलिक, ठीक है। सो हमारा हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन इट इज वाटर सोल्यूबल, सो वाटर सोल्यूबल है, लॉन्गर एक्टिंग है, लेस एडवर्स इफेक्ट होंगे। देखो वाटर सोल्यूबल है तो जा जाके डिपॉजिट नहीं होगा, लाइक अनलाइक क्लोरोक्विन, सो लॉन्गर एक्टिंग है, सो अच्छा है। और अगर वो वाटर सोल्यूबल है, कहीं और नहीं जा रहा है, सो इट विल हैव व्हाट? लेस एडवर्स इफेक्ट। यस, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज रिमेंबर। हेंस हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन इट इज अ ड्रग ऑफ चॉइस in rheumatoid arthritis for pregnant female. For pregnant female it is drug of choice. अगर नॉन प्रेग्नेंट फीमेल है तो गाइस मैं भूल गया बताना, द ड्रग ऑफ चॉइस दैट टाइम फॉर नॉर्मली रूमेटॉइड आर्थराइटिस लेडीज, ओवरऑल ड्रग ऑफ चॉइस, ओवरऑल drug of choice for rheumatoid arthritis is methotrexate, please remember. But for pregnancy it is हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन। क्यों गाइस? बिकॉज हमारा मेथोट्रेक्सेट क्या कॉज करता है? प्रेगनेंसी में दिया गया तो यस, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, हेंस इट इज नॉट गिवन इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी, सो इट इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड, इट इज अ कैटेगरी एक्स ड्रग। कैटेगरी एक्स किसको बोलते हैं गाइस? जो ड्रग टेराटोजेनिक है, मतलब जो प्रेग्नेंट फीमेल में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, जिसके वजह से कंजेनिटल एनोमली बेबी में पैदा हो सकता है, दैट इज कैटेगरी एक्स, उसमें मेथोट्रेक्सेट भी है। सो हमारा प्रेगनेंसी में ड्रग ऑफ चॉइस इज हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन बिकॉज इट इज वाटर सोल्यूबल, लॉन्गर एक्टिंग, लेस एडवर्स इफेक्ट देन क्लोरोक्विन, ठीक? ओके नाउ गाइस एच हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन इज ओवर। नाउ अब जो उसके बाद इंपॉर्टेंट है, देखो मेथोट्रेक्सेट हो गया हमारा, तो methotrexate was the first very important. We have chloroquine, we have hydroxychloroquine. Now we have inhibitor of JAK, ठीक है? Inhibitor of JAK. So I stands for inhibitor of JAK. Okay, and S for sulfasalazine. तो यही हमारे इंपॉर्टेंट हैं जो हमें थोड़ा जानने की जरूरत है, ठीक है? ओके, सो आप लोग इनमें से हम देखेंगे अब सल्फासालाजिन, क्यों बताता हूं। नाउ गाइस सल्फासालाजिन नाम में ही देखो कुछ मीनिंग आ रही है। यस, इट इज अ सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड डिराइव्ड और इंक्लूडेड इन अ ग्रुप कॉल्ड सल्फोनामाइड, ठीक है? सल्फोनामाइड ऑल्सो इट इज अ प्रोटोटाइप ड्रग। प्रोटोटाइप ड्रग क्या होते हैं गाइस? और वो सॉरी, इट इज प्रो ड्रग। प्रो ड्रग मीन्स इट इज इनएक्टिव ड्रग, एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे हम लोग। सो इट इज सल्फोनामाइड कंपाउंड, इट इज अ प्रो ड्रग, इट इज नॉट एक्टिव। ओके, अब व्हेन अ पेशेंट टेक्स सल्फासालाजिन, ठीक है, अगर रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए पेशेंट ने लिया, तो व्हाट हैपेंस इन जीआईटी, ठीक है, it gets converted into two active form, दो एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। फर्स्ट इज pyridine and second is 5-amino salicylic acid. समझ रहे हो गाइस? यस, salicylic acid, ठीक है। सो हमारा सल्फासालाजिन, व्हेन ओरल टैबलेट ऑफ सल्फासालाजिन इज टेकन इन रूमेटॉइड आर्थराइटिस इन जीआईटी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ गट फ्लोरा बैक्टीरिया जो होंगे, इट विल कन्वर्ट the sulfasalazine into two active forms, sulfapyridine or sulfpyridine, and we have second 5-amino salicylic acid. 5-amino salicylic acid short form में ASA, so 5-ASA, ठीक है। Now this two together were bonded by azo. Azo is nitrogen bond, और एक किसने ब्रेक किया? It is the gut flora, the bacteria who has broken this bond. The azo bond of
दिस कंपाउंड आर ब्रोकन बाय द गट फ्लोरा, और जिसकी वजह से ये दो एक्टिव फॉर्म हुए। अब ये एक्टिव फॉर्म के साथ क्या होता है, इन GIT it gets absorbed and ये अब क्या करेगा, it will go in joint and it will kill lymphocyte। lymphocyte अगर मारेगा तो क्या होगा, इन्फ्लेमेशन क्या हो जाएगा गाइस, कम। सो हम लोग बोल सकते हैं कि सल्फी और सल्फ पायरिडीन इज यूज्ड इन रूमेटॉइड आर्थराइटिस। यस करेक्ट, ठीक है, अंडरस्टूड, इतना समझ गया। अब ये जो दूसरा गाइस प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है दैट इज 5-अमाइनो सैलिसिलिक एसिड। अब ये क्या होता है, नाउ दिस 5-अमाइनो सैलिसिलिक एसिड ना, इट इज वेरी अटैच्ड टू, मतलब वो GIT में ही रहता है एंड it will be used in a GIT condition. So 5-amino salicylic acid has the property to reduce inflammation for GIT condition, and that GIT condition in which it is used is ulcerative colitis guys। कौन सा, ulcerative colitis। तो it is also inflammatory condition of GIT जहां पे ये यूज होता है, ठीक है। Now it is one of the favorite drug of ulcerative colitis. How sulfapyridine is one of the favorite drug for rheumatoid arthritis. ठीक है, अब ये 5-अमाइनो सैलिसिलिक एसिड के ना 3 डेरिवेटिव सिंथेटिक ड्रग्स फॉर्म हुए हैं, ठीक है। अब सभी में सफिक्स क्या है, बीच में आएगा साला, क्या आएगा, साला। यस, सो जस्ट रिमेंबर बाय निमोनिक मॉब। सो इट इज मीसैलाजीन, देखो साला आ रहा है, यस। O stands for olsalazine and B stands for balsalazine. So balsalazine, olsalazine and misilazine. Misilazine, olsalazine and balsalazine. So all have a word common sala. So अगर जहां पे ये word common है means they are derived from 5-amino salicylic acid, और कहां यूज करेंगे, yes in ulcerative कोलाइटिस। और सल्फीपायरिडीन और सल्फपायरिडीन कहां यूज करेंगे गाइस, इन रूमेटॉइड आर्थराइटिस। अंडरस्टूड। सो दिस इज योर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ड्रग दैट इज कन्वेंशनल डीमार्ट, दैट इज सल्फासालाजिन। ओके, ठीक। ओके, अब गाइस हमारा एक और कन्वेंशनल डीमार्ट कौन सा है, जैक इनहिबिटर। अब ये जैक क्या है, जैनिस काइनेज। ये ना कहीं कहीं बोला गया है इट इज अ कन्वेंशनल डीमार्ट, कहीं कहीं बोला इट इज अ बायोलॉजिकल डीमार्ट। तो हम लोग इसको बायोलॉजिकल डीमार्ट में ही कवर कर लेंगे, ठीक है। ओके, सो अब हम लोग हमारे लास्ट डीमार्ट पे आते हैं, दैट इज बायोलॉजिकल डीमार्ट्स। वहीं पे विल कवर जैक इनहिबिटर, ठीक है। What was the mnemonic guys for biological DMARD? It was TT. So T for TNF alpha inhibitor, I for interleukin 1 antagonist. This is for T cell stimulator inhibitor, that is CD20 के अगेंस्ट, मतलब हम लोग ड्रग्स बनाएंगे। And this I for interleukin 6 antagonist, ठीक है। अब हम लोग एक एक करके देखेंगे चारों, फिर एक देखेंगे जैक काइनेज जो कन्वेंशनल डीमार्ट का हमारा बचा था, ठीक है। तो पहले पे आ जाते हैं, दैट इज TNF अल्फा इनहिबिटर, ठीक है। अब आपको इसका नाम पता होना चाहिए गाइस। और एक चीज गाइस, प्लीज डू नॉट राइट द शॉर्ट फॉर्म लाइक मी, TNF अल्फा इनहिबिटर, आप प्लीज फुल फॉर्म लिखो। ओके, अब ये कैसे याद करना है, अगेन वी हैव निमोनिक्स। यस, द निमोनिक इज अ जाइंट एलिफेंट crush inflammation. So your TNF alpha guys is like a giant elephant which इसको किसको क्रश करेगा, inflammation को, means rheumatoid arthritis को, ठीक है। So a giant elephant crush. A stands for the first adalimumab, G for golimumab, E for etanaracept, C for sertolizumab, and I for infliximab, ठीक है गाइस। ओके,
अब सभी में आपने क्या कॉमन चीज देखा, एवरी वन हैज सफिक्स मैब except this is sept means receptor antagonist and this is mab means guys monoclonal antibody, so they are the monoclonal antibody against TNF alpha, thereby the inflammation get decreased. So यही इसका mechanism है that it is a monoclonal antibody against tumor necrosis factor alpha, so it will decrease this, thereby it will kill the lymphocyte. So monoclonal antibody, MAB is एंटीबॉडी, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, अंडरस्टूड, ठीक है, ओके। अब ये इन्फ्लेमेशन को कम कर रहा है तो इसके एडवर्स इफेक्ट भी गाइस रहेंगे, समझ रहे हो? सो वी नीड टू चेक, वी नीड टू नो व्हाट आर द एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ TNF अल्फा इनहिबिटर्स। एडवर्स इफेक्ट ऑफ TNF अल्फा इनहिबिटर, just remember mnemonic I tap my inflammation. नाउ गाइस देखो TNF अल्फा कर क्या रहा है, इम्यूनिटी को ही कम कर रहा है, तो किसकी वजह से क्या हो सकता है, कभी कभी हमारे अंदर जो लेटेंट इन्फेक्शन बैठे हुए हैं ना वो रिएक्टिवेट हो सकते हैं, ठीक है। सो I स्टैंड्स फॉर इन्फेक्शन रीएक्टिवेशन, so like all any TB reactivate हो सकता है, any viral infection can reactivate, any fungal infection can get reactivated, so reactivation of the bacterial fungal viral infection, ठीक है। now T stands for it increases risk of tumor and that is lymphoma. It also increases some autoimmune reactions like lupus, exaggerate कर देगा कंडीशन को और थोड़े इसमें इन्फेक्शन बढ़ जाएंगे, ठीक है। E stands for pancytopenia, मतलब थ्रोम्बोसाइटोपिनिया भी होगा, erythrocytopenia that is megaloblastic anemia can occur and leukocytopenia. M stands for myalgia, MY, and इन्फ्लेमेशन I मीन्स इम्यूनोसप्रेशन कर देगा, है ना, इन जनरल, ठीक है, बस ये निमोनिक के लिए है, सो इम्यूनोसप्रेशन। सो दिस आर द एडवर्स इफेक्ट ऑफ TNF अल्फा इनहिबिटर दैट I टैप माय इन्फ्लेमेशन, ठीक है, मैंने अपने इन्फ्लेमेशन को टैप किया तो मुझे भाई क्या कुछ एडवर्स इफेक्ट का भी सामना करना पड़ सकता है ड्रग की वजह से। सो दे आर इन्फेक्शन रिएक्टिवेशन, इट इंक्रीजेस रिस्क ऑफ ट्यूमर लाइक लिम्फोमा, इट कैन एक्सैजरेट ऑटोइम्यून कंडीशन लाइक लूपस, then it can cause it mainly causes pancytopenia, it can lead to muscle pain, myalgia and overall immunosuppression is there, understood, ठीक है। so this is all about the TNF alpha inhibitor, ठीक, ओके। अब हम लोग इंटरलुकिन 1 एंटागोनिस्ट, देखो इसका सिर्फ नाम आपको पता होना चाहिए, ठीक है, इंटरलुकिन 1, ठीक है, 1 एंटागोनिस्ट एंड द नेम इज जस्ट रिमेंबर 1 और पहला अल्फाबेट A है, सो इट इज एनाकिनरा। सो एनाकिनरा इज इंटरलुकिन 1 एंटागोनिस्ट जो बहुत सारी इंफ्लेमेटरी कंडीशन में यूज होता है अदर देन रूमेटॉइड आर्थराइटिस। सो इट कैन बी यूज्ड इन रूमेटॉइड आर्थराइटिस, yes, it can also be used to reduce inflammation in status epilepticus. Any autoimmune condition जहां पे भी इन्फ्लेमेशन दिखेगा वी कैन यूज, जहां पे इसका रोल प्ले दिखेगा इंटरलुकिन 1 का वहां पे यू कैन यूज, ठीक है, अंडरस्टूड, ओके। अब हम लोग आ जाते हैं IL-6 एंटागोनिस्ट पे, फिर इस पे आएंगे, ठीक है। सो इंटरलुकिन 6 एंटागोनिस्ट एंड वी हैव 2 वेरी कॉमन ड्रग्स, फर्स्ट इज टोसिलीजुमैब, कहीं नाम सुना है गाइस? यस, करेक्ट, इट इज ऑल्सो इट वॉज वेरी कॉमनली यूज्ड इन कोविड, बिकॉज कोविड में इतने ज्यादा साइटोकाइन्स मतलब इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स थे, सो दिस वे द लाइफ सेविंग, दिस अलोंग विद द स्टेरॉइड्स, ठीक है, टोसिलीजुमैब। सेकेंड इज सारीलुमैब, मैब ये भी मतलब क्या है, इट इज अ मोनोक्लोनल एंटीबॉडी अगेंस्ट इंटरलुकिन 6, सो टोसिलीजुमैब
It is used in rheumatoid arthritis. It was used in COVID to control, ठीक है, the cytokine storm, ठीक, okay. It is also used in any autoimmune condition, जो भी inflammatory condition होंगे, inflammatory condition, both, हाँ, साइरिलुमैब भी यूज कर सकते हैं, टोसिलिजुमैब, बट मोस्ट कॉमन टोसिलिजुमैब इज यूज्ड, ठीक है, अंडरस्टूड, ओके, ओके गाइस. अब गाइस टी सेल स्टिमुलेटर इनहिबिटर, ठीक है, सो टी सेल स्टिमुलेटर इनहिबिटर. अब गाइस आपको पता है टी सेल के ऊपर कौन सा सेल प्रेजेंट था, CD20, तो CD20 के अगेंस्ट, ठीक है, सो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी अगेंस्ट CD20, monoclonal antibody against CD20. So we have a drug which is against the CD20, ठीक है, and the name of the drug is rituximab. क्या नाम है guys? rituximab. ठीक है, वेरी 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 इट इज यूज्ड वेरी कॉमनली. अगर आपको उसका यूज याद रखना है, सो वी हैव द निमोनिक इंडिकेशन, जस्ट रिमेंबर उसी का वर्ड रीट और मैब. सो रीट मैब. सो आर स्टैंड्स फॉर, यस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस. आई स्टैंड्स फॉर इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा. थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा. So that is ITP. T stands for transplant rejection. M stands for multiple sclerosis. देखो इसके यूजेस आए हुए हैं रिटुक्सिमैब के, तो यू शुड नो बाय निमोनिक रीट मैब. A stands for autoimmune hemolytic anemia. And B stands for B cell lymphoma, that is, and we have two, that is non-Hodgkin's lymphoma and chronic leukemyid leukemia, ठीक है. तो CLL non-Hodgkin's lymphoma and CLL, ठीक है, chronic leukemyid leukemia, ठीक. So B is B cell lymphoma, NHL and CLL. Okay, ठीक. So this is all about the indication of rituximab, which is a monoclonal antibody against CD20. ठीक है. अब गाइस हमारा लास्ट एक टॉपिक बचा है, कौन सा, जैक इनहिबिटर, विच इज ऑल्सो कन्वेंशनल डीमार्ट. तो हम लोग क्या देखेंगे अब, जैक इनहिबिटर. सो जैक इनहिबिटर का नाम क्या है गाइस, फुल फॉर्म, यस, नेम फुल फॉर्म इज जैनस काइनेज इनहिबिटर, प्लीज रिमेंबर, ठीक है, इट इज जैनस काइनेज इनहिबिटर, ठीक है. अब व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, भाई कैसे काम करते हैं, ठीक है. नाउ ऑन दिस सेल, ठीक है, नाउ समझो, ऑन दिस सेल वी have this receptors and this are the JAK receptors, just remember, ठीक है. Now your interleukin 1, interleukin 6 and TNF अल्फा, ये कहां से प्रोड्यूस हुए गाइस, यस, लिम्फोसाइट से प्रोड्यूस हुए, ठीक है. अब ये क्या करेंगे, इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस करेंगे, कैसे, नाउ थ्रू दिस सेल. So it will act via JAK receptor. So interleukin 1, 6, TNF alpha attached to JAK receptor, and then it will cause inflammation. समझ गया? Yes. So this is very important class of drug. So through the JAK receptor, your interleukin 1, 6, TNF alpha will produce the inflammation. ठीक है. तो अगर मैंने JAK inhibitor दे दिया तो क्या होगा, ये हमारा inflammation ही produce नहीं कर पाएंगे. So the patient will be relieved from the symptom and from the further joint destruction. ठीक है. Okay. So which are the drugs, Janus kinase inhibitor, just remember by mnemonic, but baricitinib,
उपाडासिटिनिब एंड टोफासिटिनिब। अगर आपने एक कॉमन चीज देखी हो गाइस, सारे ड्रग्स का सफिक्स क्या है? निब। ठीक, okay. Now one more thing, JAK inhibitor. Now Janus kinase. Now there are 3 Janus kinase: JAK1, JAK2, JAK3. So सब अलग अलग जगह काम करेंगे। B देखो 12. So B stands for 2. So it will inhibit JAK1 and 2. Upada is uni. It will mainly inhibit JAK1. And Tofa is 3. Thrice समझो T. It will inhibit JAK1 and 3. Understood now? So we have but baricitinib, upadacitinib, tofacitinib, they will inhibit different JAK, thereby they will inhibit inflammation. Understood? So this is also one of the very important. ठीक? Okay. Okay. Now guys, एक चीज important रहेगी यहाँ, and the last is सल्फासालाजिन हमने देखा, ठीक है? सल्फासालाजिन का adverse effect बस याद रखो. Now they are what guys? They are सल्फोनामाइड कंटेनिंग कंपाउंड. सो पहला एडवर्स इफेक्ट क्या हो सकता है? दे कैन कॉज हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन. वेरी इंपॉर्टेंट, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन एडवर्स इफेक्ट पता होना चाहिए. सेकेंड, इट डिक्रीजेस स्पर्म काउंट. एंड थर्ड, इट कॉजेस hemolysis in G6PD deficient. Hemolysis in G6PD deficient individual. बस इतना ही याद रखो. There are 3 major adverse effect of sulfasalazine. Patients आप लिख लो, ठीक है? So just remember SH है ना. We know sulfasalazine, it contains sulfurs group and हाइड्रोजन हम लोग बोल रहे हैं सेल्फ हाइड्रोल ग्रुप के हिसाब से निमोनिक. तो S फॉर डिक्रीज स्पर्म काउंट एंड H फॉर हाइपर सेंसिटिविटी एंड सेकेंड H फॉर hemolysis in G6PD deficiency. So SHA मतलब सेल्फ हाइड्रोल ग्रुप से आप याद रख सकते हो एडवर्स इफेक्ट ऑफ सल्फासालाजिन. ठीक है? अंडरस्टूड? ओके. सो विद दिस we have completed rheumatoid arthritis and the autocoid system. So I hope everyone has understood the autocoids. हम लोगों ने चालू किया था हिस्टामिन, एंटीहिस्टामिनिक, सेरोटोनिन, माइग्रेन, प्रोस्टाग्लैंडिन, देन NSAIDs, देन गाउट एंड द लास्ट टॉपिक इन ऑटोकॉइड वॉज इज रूमेटॉइड आर्थराइटिस. सो इसके साथ हम लोग पूरा अपना एक सिस्टम खत्म कर रहे हैं. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द लेक्चर्स एंड यू आर लाइकिंग द लेक्चर्स. ठीक है? सो कीप लर्निंग गाइस, कीप सपोर्टिंग मी. ऐसे ही आप लोग प्यार देते रहिए. ठीक है? और कुछ भी है, इफ यू हैव एनी डाउट तो कमेंट सेक्शन में प्लीज कमेंट करते रहिए. ठीक? सो विल मीट इन द नेक्स्ट system and a new lecture with the same enthusiasm, with mnemonics and with many things. ठीक है? Okay, thank you so much.